for 2DG from Hyderabad. Honorable Raksha Mantri Ji, Health Minister Kothari Ji, DRDO Chairman Satish Reddy Ji, dignitaries, senior level officials from the government, ladies and gentlemen. It indeed is a proud moment for all of us, as we are very happy that we are able to partner with DRDO and INMAS in developing this product 2DG for the patients who have moderate to severe cope, in the hospitalized. This, in fact, I would say is a reaffirmation of our commitment from Dr. Reddy's Laboratories to working on the COVID disease and also addressing to a wide range of therapeutics as well as preventive options. We are indeed very thankful to DRDO collaborating with us. Very important project. In fact, this collaboration has helped us to come up with a new treatment option that can act as an add-on, as an adjunct to the standard of care for COVID patients. In fact, Dr. Reddy is committed very closely to work with the Government of India and with DRDO and do our best to make sure that it is available across hospitals, both government hospitals as well as private hospitals throughout the country. And we expect that DG can be commercially launched as very part of June itself, the first week of June, after which there will be medicine, and our team is working very hard to make sure that it is possible. I just wanted to make this commitment that we will increase our capacity and the rate of production for both the API as well as the formulation of 2DG to ensure increased availability across the country and to help bring an additional treatment option when it comes to fighting the COVID disease. The whole country is struggling at this point of time, and it does require support, help, and options from all quarters possible, and especially when it comes to treatments. This is one more that we are able to provide in the whole ammunition in terms of fighting this COVID disease. Once again, I would like to express my sincere gratitude to the Government of India, the DRDO, INMAS, the regulator, the DCGI, and the whole organization of CSTO, and also particularly my own team at Dr. Reddy's for working together, very close collaboration to come up with an additional treatment option for patients in this very extraordinary times. I wish everyone the best, and thank you very much, actually. Thank you. Thank you, sir. And now, I request the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, to release the drugs to the nation. Thank you, sir. May I now once again request Honorable Raksha Mantri to hand over the drug to the Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan. And now I request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to the Director AIMS, requesting Director AIMS, Dr. Randeep Guleria, Professor Randeep Guleria, to receive the drug from Minister of Health. May I once again request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to DG FMS. He was not able to come due to some personal exigencies. Lieutenant General
May now request Dr. Harshvardhan Ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Science and Technology and Earth Sciences to address. परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान DRDO के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ DRDO के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबॉर्ट्रीज के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे, उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे, लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरीज लगभग 3,79,000 के करीब हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इनमास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। PCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस 1 साल में जो फेज़ 1 से शुरू होकर और फेज़ 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। 1 साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए
आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर 2DG दवा को लॉन्च कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। साथ ही साथ उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस अवसर पर मैं DRDO को और उसके सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया। और उस समय से लेकर आज तक DRDO ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर जब हमारे को अस्पतालों के बेड्स की कमी महसूस हुई, हमें ऑक्सीजन बेड्स की कमी महसूस हुई, ICU बेड्स की कमी महसूस हुई, तो खाली दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे देश के अंदर, लखनऊ में, वाराणसी में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में, जम्मू में, कश्मीर में, जगह जगह सारे देश के अंदर जो है कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स विद इन नो टाइम, और अभी भी जो है वो प्रक्रिया ऑन है। इस समय जो दोबारा से हमारे सामने जो है एक सर्दी के कारण ज़्यादा तकलीफ आई, उस तकलीफ में भी बहुत बुलंदी के साथ, और जब देश ने देखा कि हमारे को एक साथ केसेस बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन है शायद उसको पर्याप्त मात्रा में सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए भी कुछ करना है, तो फिर DRDO उस समय भी उसने आकर अग्रणी भूमिका निभाई। और आज जो एक बड़े पैमाने पर PSA प्लांट्स, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स जो देश भर में लगाए जा रहे हैं, और मैं विशेषकर दिल्ली का तो मुझे इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले की बात है कि जब हमने अपने मीटिंग अपने ऑफिस में करके DRDO को कहा था कि आप तुरंत हमारे 5 जो अस्पताल हैं इनके अंदर तो तुरंत लगा दीजिए। और अभी कुछ ही दिन के अंदर जब मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, एम्स में, सफदरजंग अस्पताल में ऑलरेडी लग चुके हैं, और लेडी हार्डिंग में और हमारा जो एम्स झज्जर है उसमें बहुत जल्दी लगने वाले हैं। और खाली यही नहीं, 380 स्थानों पर खाली DRDO की मदद से अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है ये PSA प्लांट्स जो है लगने वाले हैं। और बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर DRDO उसके वैज्ञानिक लगातार हमारे को मदद कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम सब हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद आज लेना चाहते हैं। मैं देश के सभी वैज्ञानिकों को, सभी डॉक्टर्स को, पूरे DRDO के पूरे इंस्टीट्यूशन को इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो ये नई दवा 2DG के नाम से देश के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, डॉक्टर रेड्डीज लैब ऑलरेडी वैक्सीन के फ्रंट पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये आने वाले समय में देश के लोगों के लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध होगी और कोविड के खिलाफ
हमारी लड़ाई में, उस जंग में हमको और मजबूती प्रदान करेगी और कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमें निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णायक विजय प्राप्त होगी और उसमें इस दवा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी प्रार्थना, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको DRDO के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को और विशेष रूप से श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी को मैं बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। The past year has been challenging to say the least, but yet a year of courage, a year of fight back and strength of the nation. May I now request Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji to address the gathering. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी DRDO, डॉक्टर राजेश भूषण, हेल्थ सेक्रेटरी, एंड मिस्टर अपर्णा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर सुनील कुमार, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर VG सोमानी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एंड लेफ्टिनेंट जनरल सुनील कांत, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर K. सतीश रेड्डी, CMD, डायरेक्टर रेड्डी लैबोरेटरी, हैदराबाद, सभी साइंटिस्ट, डायरेक्टर एंड ऑफिसर और मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, सचमुच आज मुझे बेहद खुशी है कि DRDO द्वारा तैयार किए गए 2-deoxy डी ग्लूकोज, जिसका संक्षिप्त नाम है 2DG, इस ड्रग के लॉन्चिंग सेरेमनी में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा कि इस देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आपको बताया कि कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी और हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूँ, पूरे DRDO को बधाई देना चाहता हूँ, DRDO के हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भी बराबर इस संबंध में वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी। यह काम हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई है। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं ये कहूँगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टर K. सतीश रेड्डी, जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है मन की, एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड, सबसे जबरदस्त फीलिंग होती है। चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे दें, जितना भी पैसा दे दें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमारे जो काम हुआ है, मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इसलिए मैं DRDO और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं, जैसा मैंने कहा, उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है,
यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्रालय के ही वो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं, सचमुच मुझे लगता है कि उसकी मैं प्रशंसा न करूं तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है, और इन्हें जिन्हें करना चाहिए राजेश भूषण जी हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर रेंज डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई जो आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सबके कलेक्टिव एफर्ट से एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन की समस्या थी, काफी हद तक हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको भी काफी हद तक अब हम लोगों ने रेगुलाइज कर लिया है। अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी कहीं पर नहीं आ रही है। समय पर सेक्रेटरी हेल्थ जब राजेश भूषण जी के भी प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग में देखने का अवसर प्राप्त होता है और उस माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मेडिसिन को लेकर भी अब कोई चैलेंज हमारे सामने कोई मेजर ऐसा शेष नहीं बचा है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक टैंकर, यह सब सारी चीजों की कितनी कमी थी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, बराबर कुछ न कुछ इस प्रकार की खबरें मिलती रहती थी और कुछ लोगों के आलोचना का शिकार भी सरकार को होना पड़ता था। लेकिन इन सब सारी समस्याओं का समाधान सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा यह हुआ है और यह कहते हुए मुझे सचमुच बेहद खुशी हो रही है। ये ऑक्सीजन है और इससे भी आगे ये बढ़ने वाली है। कोविड की टेस्टिंग भी काफी बढ़ी है, काफी इसको हम लोगों ने बढ़ाया है। एग्जैक्ट फिगर तो क्योंकि रोज ये फिगर बढ़ गई है, एग्जैक्ट फिगर बताना तो संभव नहीं है। और हमारे पास और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2DG दवा जो है वो लॉन्च कर दी है और ये काफ़ी जो सांस लेने